from a diploid cell. For this to occur, the chromosomes look exactly like their parents, or why some siblings look so different from each other? The answer lies in the process of meiosis, which generates the gametes for reproduction. Meiosis is the process by which haploid cells are produced from a diploid cell. For this to occur, the chromosomes must be correctly sorted and distributed in a manner to create genetically unique cells with half the number of chromosomes as the original cell. Meiosis occurs in special cells. Meiosis is the process by which genetically unique cells with half the number of chromosomes as the original cell. Meiosis occurs in special cells called germ cells within the gonads of males and females. For the successful reduction in the number of chromosomes to occur in the new haploid daughter cells, 2 rounds of divisions are necessary. These divisions are termed meiosis I and meiosis II. Although the processes of mitosis and meiosis look similar, there are a few major differences. One obvious difference is that mitosis results in 2 diploid daughter cells, and meiosis results. Here it is shown correctly. In case of mitosis, पहले ये in case of mitosis, single cell subdivides into 2 cells having equal number of chromosomes. तो यहाँ मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ और बताइए आप इसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. डाइप्लॉइड है और इसमें 2n क्रोमोसोम्स हैं कि नहीं? ठीक है, अब देखिए. So this is mitosis. Now we will see meiosis. In case of meiosis, what happens? So here we are seeing that single cell subdivides into 2 cells, and further these 2 cells undergoing cell division to form 4 cells. That means single cell subdivides into 4 cells. This is mitosis 1 जिसमें 2 सेल बनता है, और फिर से जब डिवीजन होता है तो उसको माइटोसिस 2 कहते हैं. तो इसमें 2 माइटोसिस होती है. माइटोसिस का मीनिंग क्या होता है? दैट इज इक्वी पार्टीशन ऑफ ए सेल. एक सेल में जितनी चीज़ें उसका आधा आधा हो जाना, उसको माइटोसिस कहते हैं. तो पहले एक बार इक्वी पार्टीशन हुआ, फिर से हुआ. तो इस तरीके से ये कैसी सेल हुई इसमें लिखा नहीं है, बट ये n क्रोमोसोम हर एक में होगा. अब आगे ये बताएगा तो देखने से पता चलेगा कि क्या कहना चाहता है. नाउ let us go ahead. In 4 haploid cells. As in mitosis, meiosis begins after a cell has successfully completed tubules that will form the meiotic spindle. Sister chromatids remain attached at the centromere and condense as the cell enters prophase 1 of meiosis. Up to this point, the cell looks similar to mitosis. But 2 events occur in meiosis that do not occur in mitosis and lead to genetic diversity. The first event occurs during prophase 1, when homologous pairs of sister chromatids lie side by side in a process called synapsis, forming a tetrad or bivalent. The homologous chromosomes share similar but not necessarily identical genes. Once this structure is formed, the second event, called crossing over, can occur. During crossing over, a physical exchange between chromosome segments of non-sister chromatids occurs, increasing genetic diversity. Prophase 1 concludes with the fragmentation of the nuclear envelope as the duplicated centriole pairs move to opposite poles of the cell. As they move, the centrioles extend spindle fibers, forming the meiotic spindle. In prometaphase 1, with the paired centrioles in place, the meiotic spindle is fully formed. The sister chromatids attach to the spindle fibers by their kinetochores.
Here, another key difference between mitosis and meiosis occurs. Because of synapsis and crossing over in meiosis, homologous chromosomes remain aligned, so that a pair of sister chromatids is attached to only one pole by the kinetochore microtubules. In mitosis, each sister chromatid is attached to a spindle fiber. The fibers originate from opposite poles. During metaphase 1, bivalents randomly align along the metaphase plate. Due to independent assortment, this alignment is random and adds to genetic diversity. In anaphase 1, the homologous chromosomes separate and move toward opposite poles. Meiosis 1 ends with telophase 1, when the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis separates the cytoplasmic material, and the two daughter cells are separated by a cleavage furrow. Since the final product of meiosis 1 is two haploid cells, meiosis 2 begins without the chromosomes going through another round of DNA replication. To Centrioles again duplicate. explain it. Mitosis in simple way. Mitosis. In this module, you will learn देखो about ये देखो ये सबसे mitosis. आसान है. Mitosis is a process of cell division that makes possible regeneration of body parts. To elaborate, mitosis is the separation of nuclear chromosomes into two identical daughter nuclei. It is divided into four key phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. ये तो phase है, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन एक cell An से दो additional cell phase बनना यही called mitosis है. cytokinesis occurs after the complete nuclear division. Before a dividing cell enters Cytokinesis का mitosis, मतलब cell का टूटना. it undergoes a period of growth and rest. अब जरा देखो, This period is called interphase. अभी In आएगा. interphase, the genetic material of a cell increases. पहला केस है कि Prophase. जब जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाए. During बोलो, समझ में prophase, आया? Replication of the DNA. chromatin condenses and becomes short and thick to form chromosomes. डबल हो Each गया. chromosome has two sister chromatids joined together at the centromere. दो पेयर में The होंगे, nucleolus sister chromatids disappears and the nuclear membrane starts to break down. अब डबल The centrosomes, each with a pair of centrioles, move apart to the opposite poles, forming a spindle between them. Metaphase. During metaphase, microtubules of the spindle interact with chromosomes. This causes the chromosomes to move and align along the middle of the cell or the equatorial plate. Sister chromatids are held at the centromere, confirming the presence of protein structures called kinetochore at the surface. The kinetochore holds the chromosomes and attaches them to the spindle. Anaphase. During anaphase, the sister chromatids separate at the kinetochores, and the daughter chromosomes, along with the divided centromere, move towards the opposite poles as the microtubule shortens. The poles of the spindle also move apart and help to separate the chromosomes. As the chromosomes separate completely into two sets, one at each pole, anaphase is considered complete. Telophase. During telophase, the daughter chromosomes arrive at the pole and the chromatin starts to decoil. Also, the nuclei reform along with nucleoli. This triggers the reformation of the nuclear membrane. ये न्यूक्लियस है. Cytokinesis. अब सेल का टूटना, साइटो यानी Cytokinesis is the partition of the cytoplasm. In animals, a cleavage furrow appears in the plasma membrane, which deepens and divides the cytoplasm into two daughter cells, each containing a nucleus. In plants, new cell wall formation is triggered at the center of the cell by the formation of a cell plate. The cell plate grows outwards till it meets the existing wall, resulting in two daughter cells. In this module,
have Now, learned. we Mitosis were is the process. only the single cell in our mother's womb. तो मदर्स वॉम्ब में हम लोग सिंगल सेल ही थे उसके अंदर में, और सिंगल सेल जो बल्बियोनिक बॉल्ब होता है जिस झिल्ली में हम लोग रहते हैं, तो मदर्स वॉम्ब में एक तरीके का बैलून होगा, उसमें हम लोगों की ग्रोथ होती है। तो सिंगल से 2 बने होंगे, फिर 2 से कितने बने होंगे? 4। 4 से कितने बने होंगे? 8 बन गए होंगे। लेकिन 8 बनने के साथ फिर और बढ़ते गए, 4 से 8 डबल होते हैं, 8 से 16 होते चले जाएंगे जैसे जैसे ये ग्रोथ होगी। सो फिर हम लोग क्या बन जाते हैं? पहले जाइगोट होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद क्या बन जाते हैं? जाइगोट के बाद जब 8 हाँ जाइगोट 8 बार सेल डिवीजन होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 8 टाइम्स होगा। 64 और फिर 64 से 132 कितनी बार हुआ डिवीजन? 1 2 3 4 5 6 7 और 2 64। ये चीज़ हो गई। तो जब ये हो, हाँ बोलो क्या क्या बेटा? 128 करो तो 128 हो जाएगा, और 128 के बाद 256 हो जाएगा। तो 256 जब हो जाएंगे तो इसको कहते हैं अब ये एम्ब्रियो हो गया। और एम्ब्रियो के आगे जब हम लोगों का जेंडर डिसाइड हो जाता है 2 महीने के बाद, पता चल जाता है मदर, हम लोगों का जो फर्स्ट सेल है मदर में, वो 2 महीने के बाद पता चल जाता है ये लड़का या लड़की, फिर उसको कहते हैं फीटस। ये 2 मंथ्स के बाद होता है। और फीटस के बाद फिर और 7 मंथ्स, हाँ 7 मंथ्स के बाद वो पूरा बेबी बन जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों की ग्रोथ मदर्स वॉर्म में होती है। 56 के बाद नहीं होता कैसे? वो सब हो ही रहा है, उसके बाद फिर ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं। 256 तक तो एक लंप ऑफ मीट रहता है, मांस का थक्का, उसी को तो एम्ब्रियो कहते हैं। फिर बाद में ये सब हो रहा, समझ में आ गई बात? ठीक है कि नहीं? अब देखो, सो growth of baby in mother's womb. So let us see how it occurs. Only 2 cells are needed to create a baby. ये स्पर्म्स हैं जो फादर्स के स्पर्म्स होते हैं, वो मदर्स वॉर्म में जाते हैं और ओवरी की तरफ बढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एग के लिए। देखो कितने छोटे छोटे हैं, ये दौड़ रहे हैं, और एग कितना बड़ा है, फिर से देखो, यही चीज़ हमने आपको बताई थी, ये एग है, ठीक है, एंड दिस इज फर्टिलाइजेशन। लेट अस सी इट अगेन। Two cells and a miracle. In just 9 months, this pair of cells blossoms into billions of cells. Gently nestled and protected in a mother's womb, a tiny human thrives. Together, mother and baby share this journey of life, this magnificent adventure called. बोलो। सर जो इतने सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही जाता है उसमें? जैसे ही एक जाएगा इसके बाहर सीमेंटेड पोर्शन हो जाएगा, दूसरा जाएगा टूट जाएगा, दूसरा जा ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसी तरीके का सिस्टम बना हुआ है। कभी कभी गलती से 2 एक साथ चले जाते हैं, एक के बाद अगर नैनो सेकंड के बाद भी दूसरा जाएगा तब तक इसमें सीमेंट हो जाएगा पूरा, फिर वो सब टूट जाएंगे, फिर ऑल वेस्ट है। नहीं तो अगर 2 एक साथ चले जाते हैं तो जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब देखो Pregnancy. ये 1 महीने का है, वीक 5, धीरे धीरे एक छोटा सा कैलस डेवलप होगा, लंप ऑफ मीट। अब ये बेबी का स्टेज है,
देखो बट इट इज नॉट शोइंग प्रॉपर्ली, ये अभी भी उसी बैलून में बच्चा इस तरीके से दिखाया गया है, बट आई थिंक इट इज नॉट शोइंग प्रॉपर्ली। नमस्कार, मैं डॉक्टर मयूरी कोतवाल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी प्रैक्टिसिंग इन जयपुर। We will now discuss the mitosis and meiosis which is of our concern. लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको पता चल गया ना कि only 2 cells are needed to make a baby और दोनों हैप्लॉइड होने चाहिए। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि only 2 germ cells are needed to make a baby. Only 2 germ cells are needed. ये स्क्रीन कम आ रही है आप लोगों में, थोड़ी सी दिक्कत है। अब देखो ओनली 2 germ cells are needed to make a baby. Baby, that is male germ cell या father cell, male germ cell that is called sperm, वो बहुत छोटा होता है, sperm cell भी कह सकते हैं, and female germ cell वो बड़ी होती है और वो सिंगल होती है, female germ cell, तो it is ovum। now ये दोनों है, तो ये एक स्पर्म होगा और ये हो गया ओवम। तो जब ये चीज़ इसके अंदर चली जाएगी और अपना न्यूक्लियस फ्यूज़ कर देगी तो उसके बाद जाइगोट बन जाएगा और इसके अंदर एक न्यूक्लियस, इसके अंदर एक न्यूक्लियस। जब ये इसमें चला जाएगा आफ्टर दैट देयर विल बी द 2n अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, इसमें डबल क्रोमोसोम हो जाएंगे। ये हैप्लॉइड है, n क्रोमोसोम है, 2n को कंप्लीट क्रोमोसोम कहते हैं और इसमें भी n है। इट इज हाफ क्रोमोसोम। n क्रोमोसोम का क्या मतलब है? हाफ क्रोमोसोम। तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ता है? हैप्लॉइड। ये भी हैप्लॉइड है क्योंकि इसमें भी तो हाफ है। हाफ मैनेजर हो, सेक्रेटरी ना हो, दैट इज हैप्लॉइड। फिर अब ये बन गया क्या? जाइगोट। क्या ये जो ओवम था वही एग था क्या? इसी को, अच्छा, अब इसमें जब स्पर्म अंदर चला गया तो क्या ये फर्टिलाइज्ड एग हो गया क्या? तो जो फर्टिलाइज एग हो गया क्या उसी को जाइगोट कहोगे? क्या अब इसमें 2n क्रोमोसोम्स हो गए हैं? तो क्या ये डाइप्लॉइड हो गया है? अगर अब ये माइटोसिस करता रहेगा, इट विल डू मल्टीफोल्ड, मैनीफोल्ड माइटोसिस जिंदगी भर करता ही रहेगा। अभी भी आप लोगों में तो कर ही रहा है, ग्रोथ हो रही है। अभी तो जब तक 20-21 साल के नहीं हो जाओगे तब तक हाइट भी बढ़ेगी, वेट भी बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा। तो इस तरीके से माइटोसिस होती जा रही है। लीवर भी बढ़ेगा, आइज़ भी बढ़ेंगी, सब ऑर्गन बढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये जो माइटोसिस हो रही है तो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए। और ये जो पहला सेल है ये मदर्स वॉम्ब में था। तो इस तरीके से बाई माइटोसिस इट मेक्स, यही जाइगोट है। अच्छा, जाइगोट के बाद क्या बना होगा बताओ? एम्ब्रियो के बाद क्या बना होगा? फीटस। फीटस में जेंडर डिसाइड हो जाता है क्या? इसीलिए तो लोग फीमेल फीटिसाइड कर देते हैं, जो कि एक अपराध है। फीटिसाइड, फीटस का साइड यानी किलिंग, और फीमेल फीटिसाइड कन्या भ्रूण हत्या, और उसमें फिर 14 साल की जेल भी हो जाती है। तो इतना सिर्फ मतलब पेट में अगर किसी के फीमेल बच्ची है तो वो सोचते हैं हमें दहेज न देना पड़े उसके लिए, और उसके लिए उसको पेट में ही मार देते हैं। तो डॉक्टर की मदद से बताते नहीं है, बट देयर आर सम हॉस्पिटल्स जो चोरी चोरी बता देते हैं अल्ट्रासाउंड से। तो अगर वो बता देते हैं फिर वो डॉक्टर भी जेल जाते हैं, उनका सर्टिफिकेट छीन लिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, इनवैलिड हो जाता है।
तो अगर ऐसा कहीं होता है जो जेंडर बता दे तो फिर वो हॉस्पिटल सीज कर लिया जाता है। तो ये बताना भी अपराध है और फीमेल फीटिसाइड भी अपराध है, क्योंकि इससे हमारे समाज में मेल और फीमेल के रेशो कम हो रहे हैं। और अगर मेल फीमेल का रेशो कम हो जाएगा तो फिर इक्वल नहीं रहेंगे, तो बहुत ऐसे मेल्स हो जाएंगे जो मेल बढ़ते जाएंगे, फीमेल को लोग मारते जाएंगे। तो जो मैरिड मेल होगा वो ज़्यादा अपराध करेगा कि जो बिना मैरिड होगा, अनमैरिड होगा, उससे अपराध करने की ज़्यादा संभावना। जिसके बीवी बच्चे होंगे वो ज़्यादा अपराध करेगा, जाके किसी को मारेगा चाकू से, कि जिसकी शादी नहीं हुई है वो मारेगा। हाँ, तो जिसकी शादी नहीं हुई है वही मारेगा। तो इसका मतलब है कि इफ़ दिस फीमेल एंड मेल रेशो डिसबैलेंसेस, अगर ये रेशो जो है ठीक नहीं रहता है, देन हमारा जो सोशल हार्मनी है, जो देयर आर द सच टाइप ऑफ सोशल एविल्स हैं, वो बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए भी इस बताना इसलिए गलत है क्योंकि बताने के बाद लोग कहते हैं कि इंसिस्ट करते हैं कि इसको अब जो फीमेल है उसको मरवा दो, क्योंकि हरियाणा और राजस्थान में ऐसे ही है, क्योंकि वो दहेज नहीं देना चाहते। राजपूत तो कहते हैं कि बेटी होगी तो हमें किसी के सामने झुकना पड़ेगा, तो यहाँ इसलिए नहीं बेटी को रखना चाहते हैं, कहते हैं कि हम राजपूत हैं और हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। समझ में आई बात? उनको वो झुकना अपनी आन बान शान के खिलाफ समझते हैं। इसलिए बुरी बात मानते हैं लोग कि देयर आर सम रेडिक्यूल्स। कुछ लोग सोचते हैं कि बेटी से वंश नहीं चलेगा, वो दूसरे के घर चली जाएगी, फिर मेरी देख रेख कौन करेगा, रखना है तो बेटा रखो। देयर आर सो मैनी रेडिक्यूल्स। और कुछ लोग दहेज के लिए करते हैं और कुछ लोग आन बान शान के खिलाफ समझते हैं, जैसे राजस्थान में। देयर इज ओनली द केरला स्टेट वेयर द फीमेल रेशो इज मोर देन मेल and where in enrollment of admission form mother's name is endorsed, not the father's name। तो कुछ अच्छे स्टेट भी हैं, लेकिन बाकी जो इलिटरेसी है, रेडिक्यूल्स है, ऑर्थोडॉक्स है, सुपरस्टिशंस हैं, तो उनकी वजह से वो क्या करते हैं कि फीमेल को पहले तो डिटेक्ट करते हैं अल्ट्रासाउंड से, फिर ये ट्राई करते हैं कि इसको अबॉर्शन करा दें, अबॉर्ट द चाइल्ड। दे डू नॉट वांट टू डिलीवर इट, दे वांट टू अबॉर्ट इट। समझ में आ गई बात? बोलो। क्योंकि इस पर बहुत सारी डिबेट भी आप लोग करते हो ना स्कूल में, और या सुनते रहते हो, तो वही चीज़ है। अब हम लोगों ने देख लिया है कि फुल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम चाहिए, तभी आगे चलकर 2n क्रोमोसोम है तो फिर वो माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस के बाद फिर डेवलपमेंट होते होते मैनीफोल्ड डिवीजन से फिर फुल बेबी बन जाएगा। अब आगे देखते हैं माइटोसिस होती क्या है। अगर लिखने को आ जाए तो हमारे पास लिखने के लिए कुछ है ही नहीं। डेफिनेशन ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। According to CK12, the goal of mitosis is to नाउ mitosis is the process where a single cell divides into two identical daughter cells. Okay, into two identical daughter cell. Okay, now अब देखो so into two identical daughter cell। अब देखिए आइडेंटिकल होनी चाहिए, तो मियोसिस क्या है?
meiosis is a process where a single cell divides twice. Where a single cell divides twice to produce 4 cells containing half the original amount, containing half the original amount of genetic information. क्योंकि जीन पेयर में होते हैं और आधे ही हो, बिना पेयर हो, अनपेयर्ड हो, तो ये ऐसा होगा. सो मियोसिस में ये सब चीज़ें अब हम देखें. हम लोगों ने लिख तो लिया, तो जरा बहुत शॉर्ट फॉर्म में देखो कि मान लीजिए ये एक सेल है और इसमें ये 2 क्रोमोसोम हैं. आगे चल के इनका डीएनए रेप्लिकेशन होता है और फिर कंडेंसेशन होता है. वो सब चीज़ें हम पीछे देख चुके हैं. ऐसा करने के बाद ये ऐसे हो जाएंगे. तो ये डीएनए रेप्लिकेशन हुआ कि नहीं? तो ये डीएनए रेप्लिकेशन. अब इसके बाद सेल डिवीजन होगा. तो दैट इज सेल डिवीजन. तो ये बीच से ऐसे कट जाएगा और ये भी बीच से ऐसे टूट जाएगा. टूट जाएगा तो क्या होगा? 2 सेल बन जाएंगे और दोनों में एक ये पोर्शन इधर का और एक ये पोर्शन. तो फिर से ये इतने ही इतना तो रह जाएगा. ये हो गया. कहने का मतलब है यहाँ पर चूंकि जीन पेयर में है, पेयर में हो तो 2n क्रोमोसोम लिखा करो, जोम, और ये अब रेप्लिकेट हो चुके हैं. तो ये क्या हो गया? 4n क्रोमोसोम. ठीक है, क्वाड्रुप्लेट हो गया, 4n हो गया. लेकिन ये स्थिति अच्छी नहीं है. 2 बॉस हो गए हैं. तो फिर इसके बाद अब इनका डिवीजन होना चाहिए जब जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया. तो ये 2n क्रोमोसोम. क्या माही ये जो फाइनल डॉटर सेल बनी है, क्या इनमें उतने डीएनए हैं जो ओरिजिनल अमाउंट है? ओरिजिनल में 2n था और फाइनली भी क्या 2n है? तो इसका मतलब क्या है? ये मदर सेल थी. तो जो मदर सेल में था वही डॉटर सेल में हो गया. ऐसा हो गया. तो ये प्रोसेस हमने जो बताया वो क्या कहलाएगा? माइटोसिस है. एक सेल से 2 ही तो बने. दो ही तो बन रहे हैं ना. अब जरा देखो कि एक सेल फिर उससे उनका रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा? ये 2 सेल में टूट जाएगा. सेल डिवीजन. तो 2n होगा. क्या यहाँ तक वही चीज है? तो ये जो सेल डिवीजन हुआ है इसको माइटोसिस 1 कहेंगे. ये रेप्लिकेशन है.
इसके बाद इसका भी डिवीजन होगा और इसका भी डिवीजन होगा, तो अब यहाँ 4 सेल बन जाएंगे। तो कैसे बनेंगे? इन सब में अब 2 हैं, सेंट्रियोल। वो तो खींच लेगा, एक ही एक रह जाएगा। क्या इनमें जीन पेयर में है क्या कि सिंगल सिंगल है? सिंगल सिंगल है। तो एन क्रोमोसोम हुआ कि नहीं यस सर, ऑफ कोर्स। यस सर। इन ईच? ये तो मैंने सिर्फ एक क्रोमोसोम का बताया है। वैसे तो जो पिछला एग्जांपल दिया था तो 2-2 लिए थे दिखाने के लिए, होते तो हमारे में 23 है। कहो तो 23 की परेड लगा दी जाए, लेकिन फिर उतना फिगर कौन बनाएगा। तो मैंने एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम का। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, क्या वो अपने पेरेंट सेल से हाफ है? जैसे लिखा है, देखो लिखा क्या है, प्रोड्यूस 4 सेल्स कंटेनिंग हाफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो क्या ये जो फाइनल वाले में हाफ है क्या? यस सर, हाफ ही। अगर हाफ है, अगर बहुत जानती हो माही तो बता दो फिर इसे क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को। यहाँ क्या लिख दो, बोलो। सही कह रही हो। माइटोसिस 2, इतनी बात समझ आ गई? तो ये हो गई मियोसिस। मियोसिस क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन प्लस माइटोसिस 1 प्लस माइटोसिस 2। इट इज मियोसिस। इट इज डीएनए रेप्लिके क्या? सर ये माइटोसिस 2 और माइटोसिस 1 सर, इसको आपने मियोसिस लिखा है। कहाँ पे बताओ जरा। सर ये माइटोसिस का ही था ना सर? जो पहला माइटोसिस 1 है वो तो माइटोसिस की तरह ही होता है, एक बार और डिवाइड हो जाए तो मियोसिस बोल दो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अगर आपने जैसे वाइवा में पूछा कि व्हाट इज माइटोसिस एंड मेयोसिस, तो हमें क्या बस वही ऊपर जो डेफिनेशन है बस वही बतानी है? डेफिनेशन ही पूछी जाती है, या कुछ हम बीच में से कुछ हमें जानना चाहेंगे कि क्या इनको पता है, तो हम 1-2 क्वेश्चन बना के पूछ लेंगे कि अगर ये है तो कितना होगा, ये है तो कितना होगा, बस यही चीज़ें हैं। सो माइटोसिस 1, माइटोसिस, देखो चीज़ अगर आपको मालूम होगी तो आप बता लोगी। भाई हम कहें कंपाउंड का 5 एग्जांपल दो, जब कंपाउंड जिसको मालूम होगा वो तो एग्जांपल दे देगा, नहीं तो वो बोलता रहेगा साल्ट इन वाटर। फिर मैं सोचूंगा एलिमेंट इनको मालूम होगा तो एलिमेंट के एग्जांपल दे देंगे। तो कई तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं। इफ़ यू आर नोइंग द थिंग्स देन ओनली यू कैन आंसर द थिंग। समझ में आई बात कि नहीं? तो कुछ क्वेश्चन 50% क्वेश्चन तो डेफिनेशन बेस्ड होते हैं, बाकी इंटेलिजेंट बेस्ड होते हैं। तो इंटेलिजेंसी के बेसिस पे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड का डिटर्मिनेशन होता है कि टॉपर कौन है। तो वो क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि रटने वाले को इंटेलिजेंट नहीं बनाया जा सकता, जो टॉपर नहीं बनाया जा सकता। तो जिसको कॉन्सेप्ट पता है, हु इज़ कॉग्निटेड, जिसको किसी चीज़ का संज्ञान है, जानकारी है अंदर तक, जो डिफरेंस बता सकता है दूसरों से, उस चीज़ के बारे में सारे प्रॉपर्टीज़ जान सकता है, हर तरीके से जानता है, ऑल एस्पेक्ट्स को जानता है, दैट कैन ओनली बी टॉपर। तो माइटोसिस में क्या चीज़ है? डीएनए रेप्लिकेशन और क्या होगा? प्लस माइटोसिस प्लस सेल डिवीजन। बोलो यही होगा कि नहीं? सेल डिवीजन 1 टाइम्स। अच्छा, अब जब इतनी बात आपको पता चल चुकी है तो क्यों ना हम माइटोसिस एंड मियोसिस के डिफरेंस देख लें। डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। According to your genome, cells divide and reproduce in 2 ways, mitosis and meiosis. Now, Mitosis results in 2 identical daughter cells, whereas meiosis results in 4 sex cells. अब जरा देखें कि what is the difference between mitosis and meiosis?
सो ये जो माइटोसिस है ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है। ये 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप में होता है। इट फॉर्म्स बॉडी सेल। इससे कौन सी सेल बनती हैं? जो सब काम करती हैं, लीवर की, स्टमक की। लेकिन इससे कौन सी सेल बनेगी? इट फॉर्म्स सेक्स सेल। सेक्स सेल का क्या मतलब है? गेमीट। गेमीट का क्या मतलब है? जर्म सेल। ये सब जैसे स्पर्म एंड ओवा। अब आगे क्या है? नाउ जो ये जो भी चीज है इतनी बात है, बस ये दोनों एंड है। सो इट फॉर्म्स गैमीट एंड इट इज कैपेबल टू मियोसिस के बाद जो सेल्स जनरेटेड है दीज आर स्पेशलाइज्ड एंड कैपेबल टू गिव बर्थ ऑफ ए न्यू ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि इन्हीं से मिल के ही तो चीज़ें बनेंगी कि नहीं। जबकि इट क्या करता है? इट हेल्प्स इन ग्रोथ और बायोमास ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे लीवर बढ़ रहा है, हमारी बॉडी बढ़े, पूरी बॉडी में यही तो बढ़ रहे हैं। और जबकि हाँ सर मतलब कि जो रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स में, तो ये माइटोसिस में होता है कि मियोसिस में होता है? अब ये देख लें कि अब जब हमारे अंदर मेल के स्क्रोटम में, बोलो, मियोसिस की वजह से होता है। जैसे ये क्या होता है कि जैसे ये फीमेल का इस तरीके से यहाँ पर ओवरी होगी, ये तो यहाँ पर ओवरी होती है एक इस तरीके से, और वो फिर यहाँ पर जड़ी हुई होती है, इट इज़ एम्बेडेड इन इट। और इसी तरीके से यहाँ पर भी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ओवरी होगी, यहाँ से ओवा निकलेगा, ओवा रिलीज होता है इस तरीके से। 28 डेज में ओवा रिलीज। एक ही होता है ना? क्या एक होगा? दोनों में से नहीं होगा, या तो इससे या इससे। ओनली वन ऑफ द ओवरी। ओवरी इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओके। ओवरी इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल, while scrotum लेकिन सर मेल में जो टेस्टिस होते हैं ना जिसमें बनते हैं स्पर्म, वो स्क्रोटम तो जो नीचे वो सैक लाइन। हाँ वो मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। हाँ अब जरा देखो, इस चीज को लिख लो, ओवरी। इसमें हैप्लॉइड सेल होगा कि डाइप्लॉइड? सही है। और यहाँ पर ये पाउच होता है मेल में, जो कि इसमें 2 टेस्टीज होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम। में टेस्टीज हैं। टेस्टीज क्या करेंगे? टेस्टीज रिप्रोड्यूस स्पर्म सेल, इसी से रिप्रोड्यूस होता है, फिर यहाँ से फिर चला जाता है ये, ठीक है कि नहीं। सो दैट ओनली कम्स आउट। अब देखिए, तो ये जो भी चीज़ है इसमें स्पर्म बनेगा। तो ये जो मियोसिस है वो क्या कर रहा है? क्या वही स्पर्म और ओवम बना रहा है? और मियोसिस हो कहाँ रही है? क्या वो ओवरी और टेस्टीज में हो रही है? और फिर वही चीज़ जब दोनों स्पर्म और ये ओवरी मिल जाएंगे, ओवम, ओवरी से निकलने वाला ओवम, ये है ओवम। तो जैसा हमने पहले भी बता दिया है, तो जाइगोट बनेगा और फिर हम लोगों का जन्म हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब हम लोग बुक के कुछ क्वेश्चन करें। तो ये जो है, इट हैज कैपेसिटी टू गिव बर्थ टू न्यू ऑफ स्प्रिंग, it only increases biomass. It only increases biomass. ठीक है। It has capacity.
बायोमास का मतलब है कि हम लोगों की बॉडी जो जिंदा है उनका मास बढ़ने का मतलब है बायोमास बढ़ना। हम लोग बायो हैं, बायोटिक हैं, और जो ऐसी चीज़ होती है प्लास्टिक है वो ए बायोटिक है। तो ए बायोटिक का जो मास होगा वो ए बायोटिक मास है, वो 2 किलो की प्लास्टिक है। लेकिन हम लोग प्लास्टिक के जैसे मास नहीं है, हम बायोमास हैं। तो जो जिंदा है उनका बायोमास बोला जाता है, ठीक है। और क्या 2S लिखो। और इट हैज कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग यंग वंस। ये चीज है। इतनी बात समझ में आ गई। सर माइटोसिस का थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? माइटोसिस में इट ओनली इंक्रीजेस बायोमास। अब जरा देखें बुक के कुछ क्वेश्चंस। मियोसिस में इट हैज द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस यंग वंस, क्योंकि यही तो वो चीज है जो स्पर्म बनाता है, यही तो वो चीज है जो ओवम बनाता है। तो क्या इसके पास कैपेसिटी नहीं है? जब ये वही स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज करेंगे, वही स्पर्म और एग फर्टिलाइज करेंगे, वही पॉलन और एग फर्टिलाइज करेंगे, तो प्लांट का सीड बनेगा और एनिमल्स बन जाएंगे। बोलो, है बात कि नहीं? चलो आगे बढ़ें, नहीं तो ये चैप्टर ही नहीं खत्म होगा। अब कितने क्वेश्चन हैं? चलिए एक्सरसाइजेस पे आइए। फर्स्ट हो गया, जो हो जाएंगे, जो हो गए वो छोड़ देंगे। दैट इज मेक ए कंपैरिजन, प्लांट सेल्स आर डिफरेंट, ये हो गया। सेकंड आओ, हाउ इज ए प्रोकैरियोटिक, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाएगी तो क्या हो जाएगा? सो इफ प्लाज्मा membrane ruptures, then प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? पहले ये लिखो, इट कंट्रोल्स एग्जिट एंड एंट्री ऑफ मटेरियल इनसाइड टू आउटसाइड द सेल, ठीक है। इनसाइड सेल एंड आउटर सराउंडिंग। इट रेगुलेट्स द मटेरियल, इसका मतलब क्या होता है? इट रेगुलेट्स, किसे आना है किसे नहीं आना है। रेगुलेट्स, आपके यहाँ का चपरासी आप लोगों को रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट्स द मटेरियल टू एंटर इनसाइड सेल। ठीक है। इफ इट रप्चर्स, then there will be uncontrolled entry of हार्मफुल पैथोजेंस। जो बैक्टीरिया होते हैं वो तो अंदर आ जाएंगे, कि उन्हें रोक लोगे अपने अंदर आने से? बोलो, अनकंट्रोल्ड एंट्री ऑफ पैथोजेंस, हार्मफुल पैथोजेंस, हार्मफुल बैक्टीरिया या पैथोजेंस। पैथो का मतलब रोग, बीमारी, और जेंस का मतलब जनरेट करने वाले। सो एंट्री ऑफ पैथोजेंस, अनकंट्रोल्ड एंट्री हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी। विच कैन हार्म सेल,
ऑल्सो इसके अलावा क्या होगा, साइटोप्लाज्म एंड अदर सेल ऑर्गेनेलीज भी बाहर जा सकते हैं, ये भी तो हो सकता है ना अगर रप्चर हो गई तो। ऑल्सो सेल organelles and cytoplasm will come out of the cell and cell will not function properly. And ultimately dies. इसलिए वो मर जाएगी प्लाज्मा में। तो उसके बाद फिर अब है कि लाइजोसोम फट जाएगा और ऐसे केस में उसे खा लेगा। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऐसा करने के बाद ये तो होगा। अब जरा देखें 4th क्वेश्चन, What would happen to the life of cell if there is no Golgi apparatus? बताओ अनुराग। हाँ, अनुराग को बताने दो। Packaging and dispatching of different types of proteins to various targets inside the and outside the cell will be influenced, and the products of cell cannot be stored and modified later. This will affect lysosomes formation. This will cause accumulation of worn out and dead cell organelles within the cell, which may cause cell death. ठीक है। So what would happen to the life of cell if there is no Golgi apparatus? So in absence of Golgi apparatus, ठीक है, there will not be any storage। प्रोटीन को स्टोर कौन करेगा, जो बना रहा है वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। देयर विल नॉट बी एनी स्टोरेज, स्टोरेज नहीं होगा, पैकिंग नहीं होगी, एंड डिस्पैच ऑफ प्रिपेयर्ड मटेरियल, प्रोटीन एंड लिपिड्स। ठीक है, ये सब कुछ नहीं होगी तो फिर क्या होगा। सो द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस विल बी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। क्या In absence of Golgi apparatus, then it will not be. देयर विल नॉट बी एनी स्टोरेज, कोई स्टोरेज नहीं होगा, पैकिंग नहीं होगी, डिस्पैच ऑफ प्रोटीन। ये अगर गोल्जी ऑपरेटस ही तो ये है, बोलो क्या नहीं आएगा। देयर विल नॉट बी एनी स्टोरेज, देन नहीं है, ये देयर है। देयर विल नॉट बी एनी स्टोरेज ऑफ, ठीक है, देयर will not be, as it is obvious that we are here talking about cell, it is all about cell only. So transportation, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो पैरालाइज्ड हो जाएगा। सिस्टम गेट पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड का मतलब स्टॉप हो जाएगा। एंड विल कॉज, इससे क्या होगा, विल कॉज द नॉन फंक्शनिंग ऑफ सेल। फिर क्या सेल ठीक से काम कर पाएगा। विल कॉज, एक ही कोई ऑर्गन खराब हो जाए, अगर हमारे पैर ही टूट जाए तो क्या हम खाने तक पहुंच पाएंगे और खाना खा पाएंगे। विल कॉज नॉन फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड सेल विल अल्टीमेटली डाई। चाहे माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो जाए तो एनर्जी नहीं मिलेगी। और तो ये लाइसोसोम भी नहीं बना पाएगा। वो सब भी तो है। एंड देयर विल ऑल्सो नो लाइसोसोम विल बी फाउंड, ये भी लिखो। एंड तो जो मैंने बोला था वो सही था ना?
वो बिल्कुल ही ठीक था, लेकिन आपने इतना अच्छा बोल दिया कि मैं उसे याद ही नहीं रख सका। आप धीरे धीरे बोलते तो मैं धीरे धीरे लिख देता और वो सबके लिए हो जाता। नॉट बी एनी लाइजोसोम फॉर्म्ड, तो कोई लाइजोसोम भी नहीं बन पाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई? यही सारे काम तो ये करता है। नेक्स्ट देखो, which organelle is known as power house of the cell? माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज, हाँ, प्लास्टिड्स नहीं कहलाता है। उस वो क्या करेगा, वो पावर देता है क्या किसी को? वो तो कलर देता है। सो नहीं लिखा देते हैं विच ऑर्गेनिल माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ तो वो लिख देंगे इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल एज इट ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज, तो ये क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है और क्या करेगा, ब्रेक्स डाउन molecule and prepare ATP molecule which is energy currency. And dispatches these ATP molecules to each and every cell organelle for their functioning. And dispatches, इनको dispatch करेगा these ATP molecule। एक ग्लूकोज के टूटने पे कितने ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं? 36। अभी आप जान ले, थोड़ा इधर उधर कर लें, सही हो जाएगी बात भी। अच्छा, and dispatch these ATP molecules to each and every cell organelle for their functioning। बोलो, समझ में आ गई कि इसे क्यों कोशिका का बिजली घर कहा जाता है? नाउ अगली बात पूछी गई है कि वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन कंस्टिट्यूटिंग द सेल गेट सिंथेसाइज्ड। प्रार्थना बताओ, कहाँ बनते हैं ये लिपिड्स एंड प्रोटीन? लिपिड्स, अब ये आप जान लें, हाँ ठीक है, आर सिंथेसाइज्ड on SER and RER respectively। How does an amoeba obtain its food? क्या ये हमने आपको बता दिया और लिखवा भी दिया है क्या? ठीक है, रिटर्न में लिखा दिया ना, ठीक है। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस बताओ माही। बताने दो, देखो क्या बताती। नहीं नहीं, अभी कार्तिक बताएंगे, कुछ मिसिंग है। कार्तिक बताओ। Sir, movement of water and minerals. Sir, may I tell please? नहीं नहीं, अनुराग। Sir, please may I?
ऐसे हमें पूछना होगा सूर्यांश, तो हम पूछ ही लेंगे, इन लोगों को भी तो ग्रोथ करना है ना। अनुराग, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है। हाँ बोलो अनुराग। यस सर। सर किसका आंसर? ऑस्मोसिस। आप बताओ सूर्यांश। Yes, sir. The osmosis is a process of diffusion of water from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a semi-permeable membrane. बस यही बिल्कुल सही है। अब मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मूवमेंट भी लिख सकते हो, या सबसे अच्छा है जैसे इन्होंने बताया उसमें कुछ गड़बड़ है ही नहीं, डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन आप इतना जानते हो सूर्यांश, हमें तो नहीं लगता आपको पढ़ने की जरूरत है। यही तो मेरी एक तरह की दिक्कत रही है सर। मैं पता मैं ऐसे बोल तो देता लेकिन फिर पता नहीं एग्जाम में क्या होता है। अच्छा अच्छा, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। चलिए अब नाइन्थ देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में, कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट, टेक 4 पील्ड पोटैटो हाफ्स एंड स्कूप ईच ऑफ देम। 4 पोटैटो लिए गए हैं और उसमें से बीच में से गड्ढा कर दिया गया पोटैटो के बीच में, और चारों को फिर अलग अलग वेसल में रखा गया। देखिए क्या क्या किया गया, और फिर उन पर क्या एक्सपेरिमेंट किए। इसके बीच में पहले तो छील लिया गया और फिर उसको स्कूपिंग कर ली, बीच का पोटैटो हटा दिया गया, कटोरी जैसा बना दिया गया और ऐसे कर दिया। ऐसा कर दिया। ए बी सी डी है ये 4। कीप कप ए एम्प्टी, ए में कुछ नहीं डालना, ये खाली है। कीप 1 टीस्पून शुगर, इसमें शुगर डाल दी। सी में 1 टीस्पून सॉल्ट, इसमें नमक डाल दिया, ये सी है। और डी में क्या किया, शुगर इन द बॉइल्ड, इसे बॉईल कर लिया और फिर शुगर डाली। एंड इन सब को एक पानी के बर्तन में रख दिया। तो आपको बताना है कि क्या ए में क्या होगा, बी में क्या होगा, सी में क्या होगा, डी में क्या होगा। ए में क्या होगा अनुराग? सर ए में ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस तो अब यहाँ पर कोई कंसंट्रेशन तो है नहीं, या कुछ इस तरीके से लोअर या कुछ, तो ए में क्या चीज हो सकती है? सो जस्ट एक मिनट, जस्ट मैं देखता हूँ। सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर 5 क्लास 9 साइंस। ए में कुछ होना नहीं चाहिए, बट लेट अस सी। अंदर कुछ है नहीं ना। जो आपने बोला ना कि ए में क्या होगा सर, इसमें तो ये क्वेश्चन है नहीं। जस्ट 1 मिनट। हाँ, सो नाउ अब जरा देखें कि
वाटर किस में आ जाएगा, इसमें वाटर भर जाएगा, जो बी है इसमें पानी भर जाएगा। पहले वाले में क्या होगा? पहले में कुछ नहीं होगा, इसमें पानी भर जाएगा, इसमें पानी भर जाएगा। क्यों? इसलिए अब देख लो, क्योंकि इसमें क्या होगा ना कि यहाँ पर जो शुगर है वो इसमें की सेल्स की वाटर खींच लेगा, शुगर अल्टीमेटली डिसॉल्व हो जाएगा। शुगर को क्या पोटैटो में डाल दोगे तो क्या अपने आप पानी नहीं जनरेट कर लेगा, इट विल टेक आउट द वाटर फ्रॉम द सेल्स। ये क्या पोटैटो बिना सेल की बनी है क्या? तो इस तरीके से ये एक सिरप बना देगा और ये साल्ट बना देगा ऑटोमेटिकली, थोड़ी देर में हो जाएगा, आधे घंटे रखना पड़ेगा, तुरंत तो कुछ नहीं होगा। लेकिन चूंकि ये सेल से पानी ले लेगा और सेल से, अब तुम अचार डालते हो तो नमक क्यों डालते हो, तुम खुद ही बताओ। मम्मी कहती है आधा किलो नमक लाओ, इसमें आम में डालना है, क्यों डालते हो? क्या दैट सॉल्ट टेक्स आउट वाटर फ्रॉम द पिकल्स, वो मैंगो वो खींच लेता है। तो इस तरीके से ये भी, यहाँ पर भी वही होगा। तो जब ये ले लेगा तो इन सेल्स के अंदर पानी कम है कि ज़्यादा? अब कम हो गया है, तो वाटर विल मूव थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इधर मूव करता करता, और यहाँ पर भी एक सोल्यूशन बन गया है। तो बताओ इस सोल्यूशन में पानी ज़्यादा है कि बाहर पानी ज़्यादा है? सॉल्यूशन में हो जाएगा। तो अब यहाँ से हायर वाटर से लोअर वाटर में बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए तो ओके, अभी देखो, अभी एक एक करके आंसर लो। पहले 1 का आंसर लो। नहीं, एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्स इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। कह रहा है बी और सी में ही पानी क्यों जमा होगा? वाटर गैदर्स इन बी एंड सी, वाई? B and C, because in both the solutions there is difference of concentration. पोटैटो होगा ना सर? हैं? सर ऑस्मोसिस सर हॉलोड पोर्शन तो पोटैटो कब होगा ना? नहीं, अंदर भी अब सोल्यूशन बन गया ना, उसने उसका पानी खींचा, अब ये सिरप बन गया है। तो सिरप में जो पानी है वहाँ वाटर ज़्यादा है कि बाहर ज़्यादा है? सर बाहर। तो बाहर से अंदर जाएगा, बिकॉज water concentration inside cup of B and C is lower and outside it is higher. So इसलिए क्या होगा? So by osmosis it moves inside, ठीक है, थ्रू पोटैटो कप्स, वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। SPM लिख देना, सेमी परमिएबल। सेकंड पढ़ो, वाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट? Potato A is necessary for comparison. It acts as a control. तो इसकी कैविटी एम्प्टी रह जाएगी, इसकी कैविटी क्या हो जाएगी? एम्प्टी है। सो नो, हाँ, नो वाटर एंटर्स, ये चीज़ें। बोलो। हाँ, तो बीच में आप बोलते हो ना, तो जो सारे बच्चे हैं वो हम पूछेंगे तो आप बता देना, आपका नाम लेके ही पूछ लेंगे। सो अभी ए में कोई वाटर नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन नहीं है, डिफरेंस नहीं है, दैट्स वाई देयर इज नो वाटर विल गो इनसाइड इट। ऐसा कभी भी नहीं होगा। कभी आपने पपीता देखा है? बोलो। उसको छील लो, और क्या उसके अंदर गैप होता है? पपीता काटो, गैप रहता है? उस पपीते को डाल दो छील के 2 दिन पानी में, तो क्या पानी अंदर भर जाएगा? नहीं भरेगा, क्योंकि ऐसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में होता तो जितने पपीते थे
पेड़ों में लगे या कभी बारिश हो रही होती तो अंदर सब में थोड़ा ना थोड़ा पानी चला ही गया होता कहीं ना कहीं से डेंट होने पर। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है क्या कि अंदर पानी चला गया हो? उनको अलाउड नहीं है बाहर का पानी इनसाइड इस तरीके से, ठीक है कि नहीं? वाटर कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा तो ही जाएगा, अदरवाइज सेल विल नॉट अलाउ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की एक तरफ वाटर है दूसरी तरफ कुछ सोल्यूशन ही नहीं है, तो फिर तब नहीं होगा। देयर इज नो डिफरेंस ऑफ वाटर कंसंट्रेशन, एज देयर इज नो वाटर इनसाइड इट, देयर इज नो सोल्यूशन इनसाइड इट, तो फिर इसलिए कुछ नहीं होगा। तो वाई द कप ए इज देयर, तो कप ए इसलिए रखी गई है कि ये देखो, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कुकुम्बर का पीस रख दूं और कुकुम्बर के पीस में ये खीरा रख दिया मैंने, खीरे का एक पीस रखना और यहाँ पानी भर दो और यहाँ कुछ ना रखो, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ चीनी का सिरप डाल दो तब आने लगेगा इक्वल करने के लिए, ओके, देन ओनली इट विल मूव, अदरवाइज कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि जब सिरप रखेंगे देन द वाटर मूव्स, सिरप रखेंगे तो कुछ वाटर इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, एंड अल्टीमेटली इट विल मूव व्हेन इट ट्राइज टू मेक द वाटर कंसंट्रेशन इक्वल। हो तो कभी भी इक्वल नहीं पाएगा, लेकिन एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ये पानी इधर की ओर चढ़ता चला जाएगा और चढ़ते चढ़ते शुगर तो इधर कभी भी नहीं आ पाएगी सेमी परमेबल, ये इतना यहाँ पहुँच गया और ये इतना रह गया, और अभी भी ये मान नहीं रहा है, कह रहा है कि देखो उधर शुगर ज़्यादा है वाटर कम है, हमें तो जाना है। लेकिन जब ये हाँ ओके, जब ये जाना चाहता है, हाँ बोलो, ओके ओके, इतनी बात समझ में आ गई? अभी भी ये जाना चाहता है यहाँ पे, स्टिल इट वांट्स टू मूव हियर, बट लेकिन जानते हो क्यों नहीं जा पाएगा? एक स्थिति के बाद ये रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा मालूम है? ये चेंज हो गया सर, ये ना कैमरा थोड़ा, यस सर, क्या नहीं रहा सर, अभी दिख नहीं रहा है? सर डायरेक्शन चेंज हो गया। अभी एक मिनट रुको, कुछ दिखा? सर दिख तो रहा है लेकिन पूरा पेज नहीं दिख रहा सर, एक मिनट, मुझे दिख रहा है पूरा। मैं ठीक करता हूँ तो दिखेगा। अब बताओ। सर अब दिख रहा है। अच्छा अब देखिए कि ये पोजीशन है, तो ये जाना चाहता है वाटर, क्योंकि यहाँ तो अभी भी शुगर के पार्टिकल हैं, ये प्योर वाटर है और यहाँ तो शुगर है। तो अब बताइए, लेकिन जा नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ से जो वाटर का प्रेशर इस पर पड़ेगा वो इसको रोकेगा आने के लिए। जब ज़्यादा पानी किधर होता है, एक तरफ होता है, तो उसका वाटर प्रेशर ज़्यादा होता है कि कम वाले का? यहाँ पर एक नल लगा लो तो इधर इतना प्रेशर है एक्स्ट्रा हाइट का कि वो इसे आने नहीं देगा। तो आफ्टर सर्टेन टाइम दिस वाटर मूवमेंट स्टॉप्स, उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। वो आप 10th में पढ़ोगे कि ऑस्मोसिस आखिर कब तक होती रहेगी, क्या पूरा ही पानी चला जाएगा? नहीं, ये जाना चाहेगा और इधर से प्रेशर पड़ेगा, जब इसका प्रेशर और इस हाइट का प्रेशर इक्वल हो जाएगा ये वहीं ये रुक जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो लेकिन पानी हमेशा तभी जाता है जब कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है, जैसा कि शुरू में माही ने बता दिया, इफ देयर इज वाटर कंसंट्रेशन डिफरेंस देन ओनली वाटर मूव्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बोलो समझ में आ गई बात? सो व्हाई द कप ए इज केप्ट, बोलो। दोनों तरफ पानी होना चाहिए, और अगर उनमें डिफरेंस है वाटर कंसंट्रेशन का तो ही होगा, नहीं तो हमारी बॉडी के अंदर तो 70% पानी है, सारा पानी बाहर निकल जाए शरीर से, रात को सोते हैं सब निकल जाए। अब सोचो चिंता लगी रहे कि अरे हमारे स्किन से निकल ना जाए पानी, ऐसा होता है क्या कभी? ना और नहीं, तो ये चीज़ बस बात होती है। अब सेकंड बात है
potato is necessary for comparison. ये कंपैरिजन पर्पस के लिए है. थर्ड क्या है? एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन द हॉलो पोर्शन ऑफ ए एंड डी. ए में क्यों नहीं गया और डी में क्यों नहीं गया? सो वाटर डज नॉट गैदर इन हॉलो portion of A and D as cup A does not have change in concentration of water. So as cup A does not have difference in concentration so no water has moved. From outside to inside. अच्छा, अगर मान लो सूखा हुआ पोटैटो है तो पोटैटो को तो टाइट कर देगा ये वाले में, लेकिन अंदर नहीं जाएगा, ऐसे फ्री में भरेगा नहीं. मान लो जैसे कोई मुरझाया हुआ खीरा है, उसमें पानी डालो, खीरा टाइट हो जाएगा, उसके सेल्स भर जाएंगे सारे, वो पानी ले लेंगे बाहर से, क्योंकि ये भी तो सेल ही है, तो बाहर से सेल में चला जाएगा ना. क्या आप इसे सेल का बना हुआ नहीं मानते हो? पोटैटो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में भी तो सब सेल होती हैं कि नहीं, तो खूब टाइट हो जाएगा. तो जो पोटैटो है यहाँ बाहर से पानी ले लेके टाइट हो जाएगा, लेकिन अंदर तो नहीं जाएगा ना कि ऐसे ही चला जाए. डी में क्यों नहीं हुआ? डी आफ्टर बॉइलिंग इट्स सेल्स ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाइज. उसमें चीनी पड़ी थी तब भी नहीं हुआ, क्योंकि जब बॉयल कर दोगे तो क्या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मर गई है सारी? अब तो कुछ नहीं हो सकता, बिना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तो ऑस्मोसिस हो नहीं सकती. तो इस तरीके से इसमें गया ही नहीं. तो डी में क्या हुआ होगा? सो इन कप डी द सेल्स आर डेड and hence no osmosis has taken place. इस वजह से इसमें कोई ऑस्मोसिस हुई नहीं. ओके, सो हियर no osmosis has taken place. तो डी वाले में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो डी में भी कोई ऑस्मोसिस यहाँ पर नहीं हुई और पानी अंदर गया ही नहीं. ये भी सूखी पड़ी रही चीनी ऐसे. हैज टेकन प्लेस. तो इस तरीके से सो नो मूवमेंट ऑफ वाटर हैज टेकन प्लेस, यही इसका आंसर है. इन कप डी के बाद क्या लिखते हैं आप? इन कप डी द सेल्स आर डेड ड्यू टू बॉइलिंग. क्यों ऐसा हुआ? ड्यू टू बॉइलिंग. प्लांट को ऐसे ही उबाल दोगे तो क्या होगा? मर जाएंगी सेल्स. सो नो ऑस्मोसिस हैज टेकन प्लेस. दिस इज द रीजन व्हाई द कप डी एंड ए बोथ आर एम्प्टी. ओके, समझ में आ गई बात? ओके, तो नेक्स्ट अभी जो मोशन चैप्टर है वो नेक्स्ट उसमें करेंगे. आज के लिए इतना ही रखो. थैंक यू. सर टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर आएंगे? टेस्ट में टेस्ट अभी देख लो, तैयारी करते रहो. हो सकता है वाइवा अगले वीक के लिए पोस्टपोन भी कर सकते हैं, तो रिटन टेस्ट हो जाएगा इस बार. ओके. सर वो लिखा क्या है आपने? हेल्थ के बाद एक बार दिखा दो. हाँ. प्रणाम सर. ओके.